Yes, so we have a chapter 13, Principles of Commerce. So in today's class, I will discuss with you the topic that is your Chamber of Commerce. Hope so the screen is very much clear to all of you and it is visible. So before proceeding further, I would like to discuss with you that what is the meaning of chamber and what is the commerce. So chamber is basically the different, you can say, parts and different homes for the distribution of commerce. Like chamber of commerce is basically a department or in a distribution of commerce, that this house of commerce basically. So this is a house of commerce which is helping the other businessmen and guiding them about the rules and regulation and what will be the policies they have to follow up. Clear? So the main roles of the Chamber of Commerce and when it will be established, we have to go through it further. Then so in this chapter we have gone through the Chamber of Commerce basic definition. What is the basic definition I have gone through? Basically Chamber of Commerce is an industry which is working on volunteer non trading association of person. हमारे पास ऐसे लोग जो कि voluntarily अपनी wish और will से trading करें, उनकी trading directly and indirectly connected होगी हमारी commerce से या business industry से. And Chamber of Commerce, the main role they have, the main role and the main task, उनका पर्पस क्या है बेटे? बेसिकली उनका पर्पस है बिजनेस को प्रमोट करना, ट्रेडिंग को प्रमोट करना, बिजनेसमैन को ऐसे स्ट्रक्चर्स बताना, ऐसे प्रोसीजर्स की गाइडलाइंस देना जिससे वो मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर सकें. And then their task is also to protect the business interest. तो और ये लोगों के business interest से भी उनको protect करते हैं. Then we have different personnel. हमारे पास जितने भी professional लोग होंगे, जैसे businessman है, कोई भी industrialist है, bankers है, वो सारे हमारे Chamber of Commerce के members होते हैं. Basically Chamber of Commerce आपका regional basis का होता है, हर area का अपना Chamber of Commerce होगा. Like what are the area we are living in the province of Sindh, और हमारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या है? कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो कि आपको नियर केपीटी, maybe you people have visited that area. It is very you can say large building in which they are giving the guidance for the businessmen to promote their business at a better way. Now I proceed further. The Chamber of Commerce may be formed under Companies Ordinance 1984. Company Ordinance की date आपको पता होनी चाहिए, that is 1984, as a joint stock company under trade union. यूजली द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड. जब भी हम बात करते हैं, हमने इससे पहले भी डिस्कस किया, द लाइबिलिटी इज लिमिटेड बाय गारंटी. वी हैव द लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ हेयर. द मेंबर्स पे एनुअल फीस. द ऑल द मेंबर्स ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स दे हैव एनुअल फीस for their membership because they are the businessman industrialist and they have to pay. उनका जो membership card होता है वो हर साल renew होता है, जिसमें उनको एक specific annual fee pay करनी होती है to the Chamber of Commerce. बेसिकली चैम्बर ऑफ कॉमर्स बेस करता है एक ग्रुप ऑफ पीपल पे, और जिनको हम लोग BODs कहते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. चैम्बर ऑफ कॉमर्स industry, it is governed by BODs, that is your board of directors, BOD, board of directors, and the president, जिसमें हम लोग इनके president को elect करते हैं. प्रॉपरली एक इलेक्शन होता है आपके पास. जितने भी ये आपके प्रोफेशनल्स होते हैं, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, बैंकर्स, ये अपना आके एक वोट देते हैं कि उनको वो उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से किस स्पेसिफिक पर्सन को वो एज अ प्रेसिडेंट चूज करते हैं. ठीक है. देन वी हैव द बोर्ड अपॉइंट्स अ सेक्रेटरी. We have the secretary also for the board who is responsible for discharging all the work in the organization. हमारे पास एक secretary भी appoint होता है जिसकी work performance, task, duty और responsibilities क्या हैं बेटे? हमारे पास all work of the organization, जितनी भी organization के internal and external affairs हैं, वो उसको monitor करता है, उसको record करता है, formulation करता है, उसकी planning, उसके लीडिंग, ये उसका काम होता है. ही फॉर्मुलेट्स द प्रोग्राम्स, होल्ड्स द मीटिंग एंड मैनेज द ऑफिस. ठीक है. सो दिस इज योर वर्क परफॉर्मेंस ऑफ द सेक्रेटरी. देन आई प्रोसीड टू फर्स्ट द फंक्शंस ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव ऑफ कराची बोर्ड फर्स्ट ईयर इंटरमीडिएट. आप लोगों को जो अपने लिए प्रिपेयर करना है वो फंक्शंस एंड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स. हमारे पास यूजली बोर्ड परस्पेक्टिव से जो आपके पास क्वेश्चन आता है बेटे, वो आता है डिफाइंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स and its
functions. So we have different functions for the Chamber of Commerce. First of all, I proceed toward the first function, that is your, it helps to develop trade industries of a country. So it basically helping or trade, okay, it basically it promote, it helps the in trading sector of the country, and looks after and protect their interest. So develop ट्रेड एंड इंडस्ट्री, दिस विल बी, ये आप अपनी हेडिंग बना के भी लिख सकते हैं। और अगर आपको पॉइंट याद रखना है, पॉइंट टू रिमेंबर में, तो अगर मैं आपको डेवलप ट्रेड एंड इंडस्ट्री बोलती हूँ तो आपको ऑटोमेटिकली ये पॉइंट याद हो जाएगा कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेन रोल क्या है। बेसिकली हमारे पास ट्रेड और इंडस्ट्री को डेवलप करना, उनकी स्टेब्लिशमेंट करना, उनकी प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस के लिए वो टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज प्लान करना, जिससे हमारे इंडस्ट्रीज और हमारी ट्रेड बूस्टअप हो जाए, ठीक है। देन वी हैव सेकंड पॉइंट, इट कलेक्ट्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। हमारे पास चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पास तमाम इंफॉर्मेशन होती हैं जो कि रिलेट करती हैं, बेटे किस चीज़ से रिलेट करती हैं, आपकी कॉमर्स और इंडस्ट्री से। मेंटेन करता है न्यूमरस रिकॉर्ड, ऑल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड मेंटेन करते हैं न्यूमरस रिकॉर्ड्स जो कि नेसेसरी होते हैं कॉमर्स और इंडस्ट्री से रेलिवेंट। सो हेयर वी हैव द पॉइंट टू रिमेंबर, ऑल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इट मीन्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ऑल दोज इंफॉर्मेशन विच विल हेल्प द इंडस्ट्री एंड कॉमर्स ऑफ अ कंट्री। थर्ड पॉइंट आई हैव, इट इश्यूज रिपोर्ट्स एंड जर्नल्स। ऐसी रिपोर्ट्स बताते हैं ये हमारे पास, ऐसे जर्नल्स पब्लिश करते हैं फॉर डिफरेंट इंटरवल, मतलब इंटरवल मीन्स आफ्टर 4 मंथ्स, आफ्टर 6 मंथ्स, आफ्टर 1 ईयर, तो उसको हम इंटरवल्स कहते हैं। एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद ये हमें रिपोर्ट जनरेट करते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग विच, रिगार्डिंग इट्स कॉमर्स an industry of its own member as well as general public. So हमारे पास ये reports and journals क्यों acknowledge होते हैं for the guidance and acknowledgement of the general public और industry के लिए, कि currently हमारे पास कराची में जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वो कितना इस्टेब्लिश, कितना बूस्टअप कर गया है, हमारी ट्रेड की करंट पोजीशन क्या है, हमारी इंडस्ट्रीज कितनी लेवल पे हैं। तो इनकी सारी वर्क परफॉर्मेंस और इनके पूरे उसके ग्राफ्स एंड चार्ट्स मेंशन होते हैं। एडवाइजरी सर्विसेज, हमारे जितने भी अपकमिंग बिजनेसमैन हैं या जो करंट एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन हैं, उनमें कोई डिस्प्यूट्स हैं या उनकी जो मार्केट ग्रोथ है वो बहुत कम हो रही है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ एडवाइजरी सर्विसेज फॉर द लेबर प्रैक्टिस होते हैं और उनके डिस्प्यूट्स को भी सॉर्ट आउट करते हैं। सो वी हैव एडवाइजरी सर्विस in the Chamber of Commerce. They have advisory service. Why they are having the advisory service? For the labor practicing and to sort out their disputes also. Now the point number 5, it helps the members in recovering debts. बेसिकली इसका बी साइलेंट होता है, इसको हम डेट्स पढ़ते हैं। नाउ रिकवरिंग ऑफ डेट्स, हमारे पास जितने भी मेंबर्स हैं उनके जितने भी कर्जे हैं, डेट्स इज योर कर्जा, योर लाइबिलिटी, उनके जितने भी डेट्स हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए, उसको गेट बैक करने के लिए, उनके पे ऑफ होने के लिए हमारे पास जो भी प्रोसीजर्स हैं उसको चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक बिजनेसमैन को प्रॉपरली गाइड करता है कि बेसिकली अगर उसने कोई थर्ड पार्टी कोई गारंटी या अपना डॉक्यूमेंट ब्लैक एंड वाइट या रिटर्न में नहीं लिखा है तो उसके लिए उसको प्रॉपरली गाइडेंस मिलती है। इन द 6th पॉइंट, इट प्रोवाइड्स ट्रेड रेफरेंस इंफॉर्मेशन। हमारे पास ट्रेड रेफरेंस इंफॉर्मेशन होती है अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ इट्स मेंबर, के करंटली हमारा जो मेंबर है उसका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, अच्छा है, बुरा है, वो कितने एसेट्स लायबिलिटीज़ को फॉलो अप में रखता है, ट्रेडिंग उसकी स्मूथ जा रही है या उसकी ट्रेडिंग में कुछ हडल्स आ रही हैं। सो चैम्बर ऑफ कॉमर्स उसको साइड बाय साइड उसको सपोर्ट करता है और गाइडेंस करते रहता है। सो बेसिकली इट जस्ट लाइक एक्टिंग अ रोल ऑफ पेरेंट्स। हमारे जितने भी बिजनेसमैन हैं उनके लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक हेड की तरह, एक पेरेंट्स की तरह उनको सपोर्ट करता है और उनको गाइड करता रहता है फॉर द फ्यूचर prosperity. We have trade reference information. Then it protects the trademarks. अच्छा, इसके trademarks क्या होते हैं? Basically आपके, मैंने इससे पहले भी आप लोगों के साथ trademark discuss किया। Trademark is your intangible current asset. Trademark किसी को नजर नहीं आता, लेकिन हमारे पास trademark की जो value होती है वो खुद boost up करते हैं हम लोग by giving a good market.
ठीक है, अगर किसी भी कंपनी का जिस तरह आपको एक प्रॉपर एक राइट का साइन नजर आता है, ठीक है, ये जो एक राइट का सिंबल होता है सिर्फ टिक लगा हुआ होता है, आप कहते हैं ये नाइकी है, इन्होंने अपना ट्रेडमार्क खुद डेवलप किया है। एंड पैटर्न, ट्रेडमार्क्स एंड पैटर्न्स योर कॉपीराइट्स बेसिकली टू एनकरेज द कॉज ऑफ नेशनल कॉमर्स, ठीक है, इससे आपके ट्रेडमार्क्स या कॉपीराइट से आपकी नेशनल ट्रेड इंक्रीज होती है, आपका ब्रांड नेम बन जाता है। इट एक्ट्स लाइक आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर मतलब होता है जो लोगों के डिस्प्यूट्स या उनके केसेस को सॉर्ट आउट करता है। सो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अनदर रोल क्या है बेटा आपके पास, टू वर्क एज आर्बिट्रेटर। ही इज दैट पर्सन, ही इज दैट थर्ड पार्टी जो कि अगर डिस्प्यूट्स हैं, हर्डल्स और प्रॉब्लम्स आ रही हैं बिटवीन टू बिजनेसमैन, तो ये उसको सॉर्ट आउट कराते हैं। सो इट इज ऑल्सो आर्बिट्रेटर फॉर द बिजनेसमैन ऑल्सो। सो आई प्रोसीड फर्दर। We have a few other points, that is your point number 9, 10, 11, 12, 13. We have few other functions over here. It helps the exporter and importer by furnishing information. Importers and exporters की भी help होती है क्योंकि business हमारा जो अच्छी growth generate करता है basically export से करता है, ठीक है। सो जितनी ज़्यादा एक्सपोर्ट हमारी होगी उतने ज़्यादा हमारे पास जो है वो फॉरेन एक्सचेंज जनरेट होगा, हमारी जीडीपीज अच्छी हो जाएंगी। सो वी हैव टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट्स, फॉर इंक्रीजिंग द एक्सपोर्ट्स हमें अपनी क्वालिटी, क्वांटिटी, प्रोडक्ट प्राइस, उसकी प्रमोशंस अच्छी रखनी पड़ती हैं, ठीक है। इट हेल्प्स इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर बाय फर्निशिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ वेरियस नेचर्स इन कनेक्शन विद इंपोर्ट एक्सपोर्ट। सो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के भी जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन है जिसके लिए आपको अपनी प्रोडक्ट्स को कितना ज़्यादा अच्छा उसको डिस्प्ले करना है, वो तमाम फैक्टर्स भी आपको चैम्बर ऑफ कॉमर्स गाइड करती है। Then we have the next point, that is the issues export certificate. जितने भी हमारे पास एक्सपोर्टर्स होते हैं उनके पास जो लोग ऐसे बिजनेसमैन हैं जो कि अपनी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं, उनके पास बेसिकली क्या होता है बेटा, एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट होता है। दे हैव एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट विच इज प्रोवाइडेड बाय द चैम्बर ऑफ कॉमर्स, एंड दे हैव सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन ऑल्सो, जिससे पता चलता है कि हमारे पास कंपनी की एस्टेब्लिशमेंट और रजिस्ट्रेशन कब थी, विच आर कॉमन इंस्ट्रूमेंट, विच आर द कॉमन डॉक्यूमेंट्स फॉर द इंटरनेशनल कॉमर्स। अगर आपको इंटरनेशनल ट्रेड करनी है, एक्सपोर्ट करना है, तो आपके पास जो कॉमनली डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं वो होती हैं एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट एंड सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। We have another point, it advanced commercial and technical education in the country. So basically Chamber of Commerce is providing or giving you the facilities for that commercially and technical educations. Then we have number 12 point, nowadays an active part is played by the Chamber of Commerce economic policy of the government. It examines the budget every year and suggests appropriated modification the tax proposal. तो हमारे पास जो बजट लॉन्च होता है वो एवरी ईयर बजट लॉन्च होता है, ठीक है। प्लस ये इन्फ्लुएंस करता है हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट पे, क्योंकि हमारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स जितना अच्छा बूस्ट अप करेगी, जितनी अच्छी उसकी वर्क परफॉर्मेंस होगी, प्रॉफिट ओरिएंटेड होगी, तो हमारी मुल्क की, हमारी कंट्री की उतनी अच्छी जीडीपीज ग्रोथ होंगी और उसका बजट भी उतना ही प्रॉस्पेरस करेगा। सो बेसिकली चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो एग्जामिनेशन है वो एवरी ईयर उसकी बजटिंग पे है, एंड देन वो सजेस्ट भी करता है कि हमारे टैक्स प्रपोजल्स क्या होने चाहिए। This is the last point. It invites the attention of the government and public on matters. ऐसे matters पे वो attention provide करता है, government को focus करवाता है जो कि पब्लिक मैटर्स होते हैं और अफेक्ट करते हैं हमारी कंट्री की ट्रेड को, कॉमर्स को और इंडस्ट्री को। बिकॉज अगर हम बात करते हैं बेटे ट्रेड, इफ आई टॉक अबाउट द ट्रेड, commerce and industry, these are the backbone, so we cannot leave these factors. And the main motive of the Chamber of Commerce is to invite the attention of the government की attention को drag करवाते हैं basically towards these main sectors of your country which are the backbone. So this is the complete overview of this chapter, that is your Chamber of Commerce. This is your chapter which is very much important. It is just a note that you have to learn for your board perspective. You have to go through the definition of Chamber of Commerce, and then you have to go through the functions. In the functions I have discussed with you 13 points. I am discussing in a fastest way. That first point is develop trade and industry. Second, all sorts of information, maintain numerous record. Third point, issuance of reports and journals. Fourth is advisory service.
5th is your recovering debts. Number 6 is trade references information. Number 7, we have trademarks and patrons. Number 8, it acts as the arbitrator. Number 9, helps the importer and exporter. Number 10, we have issuance of export certificate and certificate of origin. Number 11, we have providing the commercial or technical education. Number 12, we have monitoring budget. You can write the word monetary over here, monitoring budget. Then number 13, we have invitation to the government or providing attention to for the government. So this is your complete chapter. Thank you so much.